لیکن اللہ نے ایک ایسا ملکہ پیدا کیا، ایک ہنر پیدا کیا تھا۔ میرے بھائیوں، امیر خسرو راستہ چل رہا ہے، راستے میں پیاس لگی، کسی کنویں کے پاس آ کر رک گئے، دیکھا کہ 4 عورتیں پانی اپنے برتن میں اٹھا رہی ہیں، اپنے برتن میں بھر رہی ہے پانی۔ امیر خسرو وہاں گئے اور 4 عورتوں سے کہا کہ مجھے پانی پلاؤ۔ 4 میں سے ایک امیر خسرو کو پہچانتی تھی، اپنے سہیلیوں سے کہا یہی امیر خسرو ہے جن کی گیت گائے جاتے ہیں، جو کوی ہے، جو شاعر ہے، ان کی گیت مشہور ہیں، لوگ ان کے گیت گاتے ہیں، یہ شعر و شاعری میں بڑا جذبہ رکھتے ہیں، ملکہ رکھتے ہیں۔ تو چاروں نے خواہش کی کہ ہمیں کوئی شعر پہلے سناؤ، اس کے بعد ہم پانی پلائیں گے۔ ایک نے کہا مجھے چرخہ بننا آتی ہے، میں چرخے سے کپڑے سوتنے کا کام کرتی ہوں۔ ایک نے کہا مجھے کتا پسند ہے، میں کتے کو اپنے گھر میں رکھتی ہوں، کتے کے سلسلے میں کوئی شعر پڑھیے۔ دوسرے نے کہا مجھے کھیر بہت پسند ہے، مجھے کھیر بہت پسند ہے، آپ کھیر کے بارے میں کوئی مصرع کہیے۔ تیسرے نے کہا مجھے ڈھول بجانا، ڈھول طبلہ زیادہ پسند ہے، ڈھول کے بارے میں کوئی شعر پڑھیے۔ امیر خسرو کو پانی پینا تھا اور جلدی بھی کرنا تھا، پیاس لگی تھی۔ اب چاروں کا الگ الگ شعر اگر پڑھا جائے تو امیر خسرو کو ٹائم لگ جائے گا، لیکن امیر خسرو کو اللہ نے ایسا ہنر دیا، ایسا ملکہ دیا تھا، امیر خسرو نے چاروں کا ایک ہی مصرعے میں جواب دے دیا۔ کھیر پکائی جتن سے چرخا دیا جلا، آیا کتا کھا گیا تو بیٹھی ڈھول بجا، لا پانی پلا۔ میرے پیارے ساتھیوں، ایسے نوجوان کی ضرورت ہے جو وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی سی مٹی، نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے۔ جہاد محبت کی آواز گونجی، کہا حنظلہ نے دلہن سے اپنی، اجازت اگر دو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو دل چاہتا ہے۔ اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، میرے بزرگوں، ساتھیوں، اس جلسے میں شریک ہوئی ہماری ماؤں بہنوں، آج جو میں نے موضوع منتخب کیا وہ ہے محاسبہ نفس، یعنی خود احتسابی، اپنے آپ کا حساب کرنا۔ جس طرح ایک دکاندار جب دکانداری کرتا ہے تو جب شام کو گھر آتا ہے تو اپنا حساب لگا لیتا ہے کہ میں نے کتنے روپے کا سامان بیچا، کتنا روپیہ منافع ہوا۔ ایک رکشہ چلانے والا ٹیکسی ڈرائیور شام کو گھر آتا ہے تو اپنا حساب لگا لیتا ہے۔ اسی طرح انسان کو اپنی زندگی میں غور کرنا ہے کہ ہم کہاں تک کامیاب ہیں اور ہمارا سالانہ کتنی نیکیاں ہوتی ہے، یا دن میں ہم نے کتنی نیکیاں کی ہے، اس پر ایک حساب لگانا، محاسبہ کرنا۔ دنیا میں کامیاب کون لوگ ہیں؟ ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کامیاب وہ لوگ ہیں جن کی نوکری لگ گئی، جن کے مکان بن گئے، جن کی پراپرٹی ہے، لیکن کامیاب نہیں ہے۔ میں اپنی تقریر کو شروع کروں
اس سے پہلے آپ کو ایک چیز بتا رہا ہوں کہ ہم جہاں کہیں رہیں، کہیں بھی جائیں، ہمارا مقصد یہ ہو کہ ہم وہاں سے کچھ سیکھیں۔ ایک نوجوان کا نام اسلام تھا، اور ایک مولوی دلی سے سفر کرتا ہوا آیا اور تقریر کرنے لگا، اور انہوں نے اپنے تقریر میں کہا کہ مسلمانوں اسلام کتنا پیچھے ہیں۔ اس نوجوان کا نام اسلام تھا، وہ من ہی میں لڈو کھایا اور سوچنے لگا، کہنے لگا یار مولانا اتنا لمبا سفر طے کر کے آئے، ہمیں پہچان رہے ہیں۔ انہوں نے بیچ میں آ کر بیٹھ گیا، پھر تقریر کرتے گئے، مسلمانوں اسلام کتنا پیچھے ہیں، وہ بیچ سے آ کر آگے میں آ کے بیٹھ گیا۔ پھر جب تقریر شروع ہوئی تو تقریر کے دوران مولانا نے کہا کہ مسلمانوں اسلام کتنا پیچھے ہیں۔ غصہ چڑھا اس کا، نیچے سے اسٹیج پہ آیا اور مولوی صاحب کا گریبان پکڑا اور کہا کیا کہ تیرے سر پہ بیٹھ جائے؟ تو میرے بھائیوں، ہم اور آپ اس میں شامل ہوئے ہیں، ہماری شرکت ہوئی ہے، ضرور یہاں سے کچھ لے کے جائیں۔ دنیا میں کامیاب کون لوگ ہیں؟ اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ آئے لوگوں، دنیا کی کامیابی نہیں ہے، دنیا میں نوکری لگ جانا کامیابی نہیں ہے، دنیا میں جاہ و جلال ہو جانا، دنیا میں کسی منصب پر فائز ہو جانا، دنیا میں دولت کا مالک ہو جانا کامیابی نہیں ہے۔ کامیاب وہ ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ کامیاب وہ ہے جو جہنم سے بچ گئے، جو جہنم کی آگ سے بچ گیا اور جنت کے اندر ان کا داخلہ ہو گیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، کامیاب وہ ہے قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّىٰ، کامیاب وہ ہے جنہوں نے اپنے نفس کو پاک کر لیا۔ کامیاب وہ ہے قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّىٰ، جنہوں نے اپنی زندگی کو پاک کر لیا، جنہوں نے اپنے نفس کو پاک کر لیا۔ نفس کیا کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے، نفس کی غلامی سے آزاد پا گئے، وہ کامیاب ہے۔ میرے بھائیوں، کامیابی کی علامت یہ ہے کہ ہم جہنم کی آگ سے بچ جائیں، ہمارا داخلہ جنت میں ہو جائے، ہمارا انٹری جنت کے اندر ہو جائے، ہم پردہ نگار کو پہنچ جائیں، ہم پیراڈائز کے اندر چلے جائیں، ہمارا ٹھکانہ جنت ہو جائے۔ کامیاب وہ ہے قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، جنہوں نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، جنہوں نے اپنے زندگی کو پاک کر لیا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ کامیاب ہے وہ لوگ ہیں۔ زندگی کو کیسے پاک کرنا ہے، نفس کو کیسے پاک کرنا ہے، نفس کی غلامی سے آزاد کیسے پانا ہے، نفس کو کنٹرول کرنا ہے، نفس کی غلامی سے آزاد ہونا ہے۔ نفس اگر چوری پر آپ کو ابھارے تو آپ کو چوری نہیں کرنا ہے، نفس اگر آپ کو زنا کرنے پر ابھارے آپ کو زنا نہیں کرنا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جنہوں نے اپنے نفس کو برے راستے سے روک لیا، جنہوں نے اپنے نفس کو خواہشات سے روک لیا، جنہوں نے اپنے نفس کو کنٹرول کر لیا، اللہ فرماتا ہے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ جنت ہوگی۔ انسان کا سب سے بڑا دشمن نفس ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، شیطان ہمارا اتنا بڑا دشمن نہیں ہے جتنا بڑا دشمن نفس ہے۔ شیطان کھلم کھلا دشمن ہے، لیکن شیطان سے بڑا دشمن ہمارا نفس ہے، اور یہی وہ نفس ہے جو شیطان کو بھی بھکایا تھا۔ کیا ہے شیطان؟ اے ابلیس، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اللہ نے تجھے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا، کہ یہ تیرے لیے زیب، کیا یہ تیرے لیے شوبھا دیتا ہے، کہ یہ تیرے لیے اچھی بات ہے کہ تو مٹی کو سجدہ کرے؟ نفس نے بھی ابلیس کو بہکایا تھا۔ تو میرے بھائیوں، ہم گناہ کرنے سے پہلے سوچتے ہیں، گناہ کرنے سے پہلے نفس ہمیں یہ کہتا ہے کہ چلو اپنا قدم آگے بڑھاؤ، اسی چیز کو تو نفس کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر نفس کو برے خواہشات سے کنٹرول کر لیا تو فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ہمارا ٹھکانہ جنت ہوگی۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ،
جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر جائیں اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر جائے اور اپنے نفس کو غلط راستوں سے بچا لیا، برے خواہشات سے روک لیا، اللہ فرماتا ہے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر اطمینان والے نفس بن گئے، آپ نے اپنے نفس کو اطمینان والا بنا لیا، نفس اگر اطمینان والے بن گئے، میرے پیارے ساتھیوں، قرآن میں اللہ فرماتا ہے ایسے نفس سے کہا جائے گا، ایسے نفس کو پکارا جائے گا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ آواز دے گا، اے اطمینان والی روح، اے اطمینان والے نفس، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے پروردگار کی طرف لوٹ جا، اپنے رب کی طرف لوٹ آ، اس حال میں کہ تو بھی اپنے رب سے راضی، اللہ بھی تجھ سے راضی، تو بھی اللہ سے راضی ہو جائے اور اللہ بھی تجھ سے خوش ہو جائے۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اور پھر میرے بندوں میں شامل ہو جا، وادخلی جنتی، اور پھر میری جنت میں داخل ہو جا۔ نفس کو اگر اطمینان والا بنا لیا، یعنی آپ اپنے آپ پر اعتماد ہو گیا، آپ کو اپنے آپ پر بھروسہ ہو گیا کہ نہیں، میں نے صحیح کیا ہے، میں نے زیادہ تر نیکیاں ہی کی ہے، گناہ کے کام بہت کم ہوئے ہیں، انسان ہونے کے ناطے 2-4 غلطیاں ہوئی ہے، کچھ گناہ ہوا ہے، اللہ سے معافی مانگیں گے، اللہ معاف کر دے گا۔ اگر اطمینان ہو گیا آپ کو، ایسے نفس سے اللہ کہے گا، اے اطمینان والی روح، میرے پاس لوٹا، اس حال میں کہ تو بھی اللہ سے راضی، میں بھی تجھ سے راضی، اور پھر میرے جنت میں داخل ہو جا۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ، اللہ فرماتا ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں نفس لوامہ کی، یعنی ملامت کرنے والے نفس کی، ملامت کرنے والے نفس کی میں قسم کھا رہا ہوں۔ ملامت والے نفس سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ رمضان المبارک کے مہینے میں 30 روزہ نہیں رکھ رہے ہیں، 20 روزہ رکھ رہے ہیں، تو آپ کو اپنے نفس پر ملامت کرنی ہوگی اور من ہی من میں افسوس کرنا ہوگا۔ نفس پر ملامت یہ ہے کہ آپ کہیں گے کہ اے بدبخت، ہے میرے بد نصیبی کہ تو نے مجھے 30 روزے نہیں رکھوائے، یعنی اگر کم نیکیاں کریں تو بھی اپنے نفس کی ملامت کریں، اور اگر گناہ کے کام کریں تو اپنے آپ پر افسوس کریں اور اللہ کے وہاں شرمندگی کا اظہار کریں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اور توبہ کریں اور نفس کی ملامت کرے کہ تو نے مجھے گناہ کروا دیا، تو نے مجھے شراب پلا دی، تو نے مجھے ڈاکہ ڈلوا دیا۔ اللہ ایسے نفس کے بارے میں قسم کھاتا ہے وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ، قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی۔ میرے پیارے ساتھیوں، غور کیجئے، اپنی زندگی کا جائزہ لیجئے کہ ہم اپنی زندگی میں کہاں تک کامیاب ہیں۔ حضرت عمر یہی کہا کرتے تھے، عمر فاروق کا یہی مشہور قول ہے کہ لوگوں، تم دنیا میں جب تک زندہ ہو، تمہاری آنکھ کھلی ہے، تمہاری سانس چل رہی ہے، تمہاری سانس چل رہی ہے، جب تک تم زندہ ہو دنیا میں اپنے آپ کا حساب کر لیا کرو، اپنے آپ کا محاسبہ کر لیا کرو، اس سے پہلے کہ تمہارا حساب و کتاب لیا جائے۔ مطلب یہ تھا، اے لوگوں، ہم زندہ ہیں، ہمیں پرواہ نہیں ہے موت کی، ہمیں پرواہ نہیں کہ ہم قبر میں جائیں گے۔ تم جب تک زندہ ہو اپنے آپ کا حساب کر لیا کرو، پتہ نہیں شام تک تم مردوں میں لکھے جاؤ، اچانک فرشتہ تمہارے پاس آئے، منکر نکیر آئے اور تمہیں بٹھائے اور یہ کہیں کہ تم اپنا حساب دو، اور تم سے سوال کریں من ربک، تمہارا رب کون ہے۔ یہ حساب و کتاب دینے سے پہلے جب تک تم زندہ ہو اپنے آپ کا حساب کر لیا کرو، اپنی زندگی کے بارے میں غور کر لو کہ ہم اپنی زندگی میں کہاں تک کامیاب ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، حضرت عمر کا مشہور یہ بھی قول ہے کہ لوگوں اپنی نیکیاں وزن کر لو، اپنی نیکیاں تول لو، اس سے پہلے کہ تمہاری نیکیاں وہاں وزن کیا جائے۔ جب تک زندہ ہو اپنی نیکیوں کو تول لو، وزن کر لو، اس سے پہلے کہ قیامت کے دن تمہاری نیکیاں تولی جائیں، وزن کیا جائیں۔ سب سے بڑی پیشی ہونے والی ہے جس دن تمہیں بارگاہ الہی میں پیش کیا جائے گا۔ اس سے بہتر ہے کہ تم اپنی زندگی میں اپنا حساب کر لو۔ جب دنیا میں انسان اپنا حساب کر لیتا ہے تو آخرت میں میرے بھائیوں ان کا حساب آسان ہو جاتا ہے۔ کہیے کیوں؟
जैसे कि एग्ज़ाम देने वाला मैट्रिक का एग्ज़ाम दे के आया, माध्यमिक का एग्ज़ाम दे के आया, और घर में आके पेपर को चेक करता है कि मैंने कितना सही लिखा, मैंने कितना गलत लिखा। मेरे प्यारे साथियों, उसको अंदाज़ा हो जाता है कि हम कहाँ तक कामयाब रहेंगे, हमें कितना मार्क मिलेगा, हमें कितना रिजल्ट मिलेगा। उसी तरह दुनिया में अगर आप अपना हिसाब कर लेते हैं, हमारी नेकियां कितनी हुई, हमारे गुनाह के काम कितने हुए, तो ऑटोमेटिक आप गुनाह के काम छोड़ देंगे और नेकियों की तरफ अपना कदम आगे बढ़ाएंगे। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह कुरान में फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद, कि हर नफ्स को गौर करना चाहिए। है ईमान वालों, अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरो और हर नफ्स को गौर करना चाहिए, हर इंसान को गौर करना चाहिए कि उसने आने वाले दिन के लिए, कल क़यामत के दिन के लिए कौन सी तैयारी कर रखी है, कौन सा ऐसा दीनी काम कर गए हैं जिनकी बदौलत अल्लाह रब्बुल आलमीन आखिरत में उनका ठिकाना बना दे जन्नत। मेरे प्यारे साथियों, आपने नाम सुना होगा हंज़ला। हंज़ला एक सहाबी है रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। इनकी शादी होती है, पहली रात है, सुहाग रात मना रहे हैं, अपनी बीवी के साथ है, शब जुफाफ मना रहे हैं, पहली रात है, ऐलान हुआ, जिहाद का ऐलान हुआ, नबी अकरम ने ऐलान कर दिया, क्या है हंज़ला, अब तुम्हें मैदान जंग में जाना है, अब तुम्हें जिहाद के मैदान में जाना है। ऐलान होता है कि इस ऐलान के बाद कोई अब घर में नहीं रुकेगा। जैसे ऐलान हो गया, जैसे ये ऐलान हो गया, ये घंटी बज गई, इस घंटी के बाद, इस ऐलान के बाद कोई अपने घर में नहीं रुकेगा। मेरे प्यारे साथियों, ये हंज़ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की पहली रात थी। शादी करके लाए, अपनी बीवी के साथ रात बीत रहे, अपनी बीवी के साथ रात गुजर रहे, अपनी बीवी से जिमा भी कर लिए। गुस्ले जनाबत करने का मौका ही नहीं मिला। गुस्ले जनाबत की नौबत आने से पहले पहले ऐलान हो गया कि तुम्हें जिहाद के मैदान जाना है। मेरे प्यारे साथियों, हंज़ला बिस्तर से उठता है, हंज़ला बिस्तर से खड़े हुए और मैदान जंग की तरफ चलना शुरू कर दिए। उनकी बीवी पीछे से दौड़ती हुई आए और हंज़ला का दामन पकड़ा और कहा, वो मेरे शौहर, आप मैदान जंग में जाना है, जाइए, मैं आपको रोकने नहीं आए हो, मैं आपको मना नहीं कर रहे हो, लेकिन ओ मेरे शौहर, अभी अभी आपने मुझसे हम बिस्तरी किया है, अभी अभी आपने मुझसे जिमा किया है, आप कैसे जा सकते हैं बिना गुस्ले के? आप पहले गुस्ले जनाबत कर लीजिए, उसके बाद सुबह आप जिहाद में जाना। मेरे प्यारे साथियों, हंज़ला कहता है, ओ मेरी बीबी, नबी अकरम का ऐलान हो चुका है, जिहाद की घंटी बज चुकी है और इस घंटी के बाद, इस ऐलान के बाद किसी को एक मिनट रोकने की मोहलत नहीं है, मैं जा रहा हूं, गुस्ले जनाबत बाकी है, रहने दो। ओ मेरी बीवी, मैं मैदान जंग में जा रहा हूं, मैं जिहाद के मैदान में जा रहा हूं। ओ मेरी बीवी, मैं अगर वापस आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो तुम इद्दत पूरी करना और दूसरा निकाह कर लेना, दूसरी शादी कर लेना। मेरे प्यारे साथियों, हंज़ला ये कहकर अपने घर से रुखसत हो जाते हैं, मैदान जंग में चले जाते हैं और लड़ाई शुरू करते हैं। कितने लोगों को जहन्नम रसीद कर देते हैं और वो खुद भी शहीद हो जाते हैं। जैसे ऐलान हुआ जिहाद का, अपनी जिंदगी पर गौर कीजिए मेरे भाइयों। हंज़ला ने ऐलान सुना कि इस ऐलान के बाद किसी को एक मिनट रुकने की फुर्सत नहीं, मोहलत नहीं है, फौरन निकल गया। पहली रात थी, हम बिस्तरी से फारिग ही हुए थे, गुस्ले जनाबत भी नहीं किए, बिना गुस्ल किए हुए हंज़ला घर से निकल पड़े और शहीद हो गए। मेरे प्यारे साथियों, हंज़ला को मैदान जंग में उनकी लाश को ढूंढा गया, तलाश किया गया। जब लाश की तलाशी हुई, लाश मिल गई, तो अल्लाह के नबी उन लाश की तरफ देख रहे हैं, उनकी नाश मुबारक देख रहे हैं कि फरिश्ते उनको गुस्ल दे रहे हैं। 70,000 फरिश्ते उनको गुस्ल दे रहे हैं। आपने फरमाया, ओ मेरे सहाबा, क्या बात है कि हंज़ला को फरिश्ते गुस्ल दे रहे हैं? जाओ पूछो उनके घर वालों से कि क्या वजह है। जब घर में पूछा कि हंज़ला को फरिश्ते गुस्ल दे रहे थे, क्या बात है, तो मेरे भाइयों, उनकी बीबी ने कहा कि हंज़ला ने
मेरे साथ हम बिस्तरी किया है, हंजला ने मेरे साथ जिमा किया है। गुस्ले जनाबत कर ही नहीं सका, ऐलान हो गया और हंजला थोड़ी देर के लिए अपने घर में नहीं रुका, थोड़ी देर के लिए घर में रुकना गवारा नहीं किया, मैदान जंग की तरफ चला गया। तो मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी ने फरमाया यही वजह है कि हंजला को फरिश्ते गुस्ल दे रहे हैं। मेरे भाइयों, उसके बाद उसका लक़ब पड़ गया गसीलुल मलाइका। मेरे भाइयों, जिनको 70,000 फरिश्तों ने गुस्ल दिया है, यह है नौजवान सहाबी का जज्बा, यह है सहाबा के अंदर जज्बा कि शादी की पहली रात है, बीबी के साथ है और अभी गुस्ल जनाबत भी नहीं की है। नबी की मोहब्बत देखिए मेरे भाइयों, और एक जज्बा देखिए कि उसी वक्त निकल जाता है। चाहता तो पूरी रात बिता के, पूरी रात गुजर के वो सुबह जा सकता था, एक दिन बाद जा सकता था। माए बहनें अगर आई हैं तो आप भी सुने कि आप अपने शौहर को कमाने के लिए 5 साल 6 साल विदेशों में रख सकते हैं, लेकिन वही शौहर अगर कहें कि मोहतरमा कहीं प्रोग्राम हो रहा है, 2-4 मिनट के लिए किसी अहबाब से मिलने जाना है, 2-4 मिनट के लिए दीनी खिदमत के लिए जाना है, आप जल्दी से जाने के लिए नहीं देंगे, आप तैयार नहीं होंगे। मेरे प्यारे साथियों, उनकी बीवी ने मना नहीं किया, ये शिकायत नहीं की कि वो मेरे शौहर आज पहली रात है, आप कैसे जा रहे हैं, जबकि उस वक्त ज़रूरत होती है। मेरे भाइयों, जिहादे मुहब्बत की आवाज़ गूंजी, कहा हंसला ने दुल्हन से अपनी, इजाजत अगर हो तो जामे शहादत लबों से लगाने को दिल चाहता है। मेरे प्यारे साथियों, हंजला ने देखा कि जिहाद का ऐलान हो गया है, अब मुझे जिहाद के लिए जाना है। तो हंजला ने 1 मिनट रुकना गवारा नहीं कि ये नफ्स का मुहासबा, हम अपनी ज़िंदगी के बारे में गौर करें कि हमारी ज़िंदगी में कितनों को तकलीफ़ हुई है। हमने कह दिया कि हम 1 घंटा में आ रहे हैं, तुम उसी जगह पे वेट करो, तुम उसी जगह पे इंतज़ार करो, जबकि हमें मालूम है कि हम 5-6 घंटा जाएंगे नहीं, हमारे पास काम है ही नहीं। लेकिन हमने अपना बड़ापन दिखाया कि अगर हम वक्त पर पहुँच गए तो लोग हमें ये कहेंगे। मेरे प्यारे साथियों, ये दुनिया में आप अपना वहदा, दुनिया में आप अपना मनसब पर फाइज रहने के लिए, दुनिया में अपना बड़ा मकाम रखने के लिए आपने उसको 1 घंटा की जगह 5 घंटा रुकवा दिया। मेरे प्यारे साथियों, ये आप अपनी ज़िंदगी के बारे में गौर कीजिए। आपके अंदर ये होनी चाहिए कि कोई शख्स मेरे इंतज़ार में बैठे, जितनी जल्दी हम वहाँ पहुँचे, जितना जल्द वहाँ हम पहुँचे, वहाँ जब पहुँच जाएंगे उनको आराम मिलेगा, उनको संतुष्टि मिलेंगे। लेकिन आपके दिल में और हमारे दिल में ये सोच पैदा नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, कौम के नौजवानों, आपसे अपील करता हूं कि आप अपने अंदर ऐसा जज्बा रखिए, जब मैदान जंग में सर कटाने की बारी आए तो सर कटाने से पीछे नहीं हटना है। जब इस्लाम की खातिर, जब इस्लाम के खातिर, दीन की खातिर कुर्बानियां देना पड़े तो हम देने के लिए तैयार रहें। देश के खातिर कुर्बानियां देना पड़े, हम इसके लिए तैयार रहें। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, इनफिरू खिफाफन व सिकालन वजाहिदू बिअमवालिकुम व अनफुसिकुम फी सबीलिल्लाह। आए लोगों, तुम हर हाल में जिहाद के लिए निकलो और अल्लाह के रास्ते में जिहाद करो। माल के साथ जिहाद करो और दौलत के साथ जिहाद करो, औलाद के साथ जिहाद करो और अपनी जानों के साथ भी जिहाद करो। ज़रूरत पड़े तो माल भी खर्च करो और ज़रूरत पड़े तो अपनी जानों को भी कुर्बान कर दो। मेरे प्यारे साथियों, इसलिए अल्लाह फरमाता है, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मोमिनों से उनकी जानों को खरीद लिया है, मोमिनों से उनके मालों को खरीद लिया है। बिअन्ना लहुमुल जन्नह, इसलिए कि उसके बदले अल्लाह ने जन्नत दे रखी है। पता चला अगर अल्लाह ने हमारे लिए जन्नत तैयार कर रखी है तो ज़रूरत पड़ने पर माल भी देना पड़ेगा, ज़रूरत पड़ने पर जान भी गंवानी पड़ेगी। नौजवानों, अपने अंदर जज्बा रखिए, देश के लिए भी कुछ कीजिए, समाज के लिए भी कुछ कीजिए। आए नौजवानों, आप गांव का मुखिया है, आप गांव का सरपंच है, आप गांव का मेंबर है, आप गांव का एमएलए है। अगर आपके अंदर जज्बा पैदा हो गया, आपके अंदर हुनर पैदा हो गए, आपके अंदर मलका पैदा हो गया तो अल्लाह वल्लाह कह रहा हूं,
अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूँ, आप ही गांव के मुखिया होंगे, आप ही गांव के सरपंच होंगे, आप ही गांव के एमएलए होंगे। मेरे नौजवानों, शर्त है कि अपने अंदर जज्बा पैदा रखे। किसी को सियासत से मतलब होता है, किसी को नहीं होता है, लेकिन मुल्क में रहने के लिए, दुनिया में रहने के लिए दोनों चीजें जरूरी है। दीन भी जरूरी है, दुनिया भी जरूरी है। अगर कोई सियासत ना करे तो हमारे रास्ता कैसे बनेगा? अगर कोई सियासत ना करे तो हमारे खिलाफ जो आवाज उठा रहे हैं उनके खिलाफ कौन आवाज उठाएगा? मेरे प्यारे साथियों, हमारे लिए जो हमें हुकूक नहीं दिए जा रहे हैं इनके खिलाफ कौन आवाज उठाएगा? इसलिए आज जरूरी है कि हर एतबार से मुसलमान और हर एतबार से नौजवान आगे रहे। मेरे प्यारे साथियों, अमीर खुसरू जैसा हमारे अंदर और आपके अंदर मलका होना चाहिए। एक शायर जो दुनिया भी संभाले, दीन का काम भी संभाले, यानी अमीर खुसरू ने चारों का जवाब एक ही मिसरे में दे दिया। नौजवानों, आपसे अगर कोई सवाल करे कि कोई ऐसी चीज है जो संविधान से टकरा रही है तो आपको वहां क्या जवाब देना है? संविधान से मुतालिक कोई सवाल करे, दीन से मुतालिक, कोई मजहब से मुतालिक सवाल करे, आपको दोनों का जवाब एक ही देना है। एक ही जवाब में दोनों सवाल का जवाब देना है मेरे प्यारे साथियों, ताकि दुनिया भी चल जाए और दीन का भी काम हो। मेरे भाइयों, कुरान फरमाता है, कुरान में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, कुरान कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद। हर इंसान को गौर करना चाहिए कि उसने आने वाले दिन के लिए कौन सी तैयारी कर रखी है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हंज़ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपस में मुलाकात करते हैं, आपस में इन दोनों की मुठभेड़ होती है, दोनों एक दूसरे को सलाम करते हैं, अस्सलामु अलैकुम वालेकुम अस्सलाम। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा, है हंज़ला बताओ हाल क्या है? आए हंज़ला बताओ खैरियत से हो या नहीं? हंज़ला का जवाब है, ओ अबू बकर सिद्दीक मैं क्या बताऊं, हंज़ला तो मुनाफिक हो गया है। अबू बकर सिद्दीक ने कहा, हंज़ला क्या बात कर रहे हो? हंज़ला कैसी बात कर रहे हो, कैसे मुनाफिक हो गए? हंज़ला ने कहा, अबू बकर सिद्दीक वल्लाह कह रहा हूं, अल्लाह की कसम खाकर कह रहा हूं, आए अबू बकर, जब मैं नबी की मजलिस में होता हूं, जब मैं सहाबा की मजलिस में होता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे सामने जन्नत है, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे सामने जहन्नम है। जब जन्नत का जिक्र किया जाता है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जन्नत में टहल रहा हूं। जहन्नम से बचने की बात होती है तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं जहन्नम से बच गया हूं। लेकिन मैं जब नबी की मजलिस को छोड़ देता हूं, मैं चला जाता हूं, अपनी बीवी के पास चला जाता हूं, अपने बच्चों के पास चला जाता हूं, अपने कुंबे कबीले के पास चला जाता हूं, अपने गांव देहात में चला आता हूं, खेत खलियान में चला आता हूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी देर के लिए जन्नत हमारी आंखों से दूर हो जाती है, जहन्नम हमारी आंखों से दूर हो जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं मुनाफिक हो गया हूँ, यानी यहाँ मेरी कुछ अलग हालत है और नबी अकरम की मजलिस में कुछ अलग हालत है, इसलिए मुझे लगता है कि मैं मुनाफिक हो गया हूँ। अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, हंज़ला जब ये बात तुम कर ही दिए, अय हंज़ला सुनो मेरा भी वही हाल है। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा कि हंज़ला मेरा भी वही हाल। चलो दोनों चलते नबी अकरम की मजलिस में। नबी अकरम की मजलिस में दोनों गए और नबी अकरम से सवाल किया, नबी अकरम से गुफ्तगू किए और कहा, अल्लाह के नबी हमारा ऐसा हाल है कि जब आपकी मजलिस में होते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि जन्नत आंखों के सामने है, जन्नत का दीदार कर रहा हूँ। जब मजलिस छोड़ देता हूँ, बीवी के पास चला जाता हूँ, बच्चों के पास चला जाता हूँ तो घरेलू टेंशन आ जाता है, घरेलू मामलात आ जाता है। अल्लाह के नबी, यहाँ हमारी कुछ अलग हालत होती है, वहां कुछ अलग हालत होती है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, आए अबू बकर तुम मुनाफिक नहीं हुए हो, आए हंज़ला तुम मुनाफिक नहीं हुई हो। ये वक्त की बात है, जब नबी की मजलिस में होते हो तो तुम्हारी अलग हालत होती है और जब नबी की मजलिस छोड़ देते हो तो अलग हालत होती है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुनाफिक हो गए। मेरे भाइयों, इन वाक़यात से गौर कीजिए। थोड़ी देर के लिए लगा कि यहाँ हमारी कुछ अलग हालत है, वहाँ कुछ अलग हालत है, तो हम मुनाफिक हो गए और हमारी अंदर मुनाफिक वाला अमल भरा पड़ा है। मेरे भाई गौर कीजिए, कितने हम ऐसे मुनाफिक वाला अमल करते हैं फिर भी अपने आप को पक्का सच्चा मुसलमान दावा करते हैं।
हंज़ला को लग रहा है कि मैं नबी के मजलिस में होता हूँ तो कुछ अलग हालत होती है, जब छोड़ देता हूँ तो अलग हालत होती है। यकीन जानिए, सपोज कीजिए कि आप इस मजलिस में हैं, जब आपको दीन की बातें बताई जाती है, जन्नत व जहन्नम का तज़किरा किया जाता है, तो आपको ऐसा लगता है कि मैं आज के बाद से गुनाह ही नहीं करूँगा, मैं जन्नत वाला ही अमल करूंगा। लेकिन यहाँ से चले जाते तो हमारी और आपकी हालत बदल जाती है। तो मेरे प्यारे साथियों, हम तो गुनाह कर बैठ जाते हैं। अबू बकर सिद्दीक की ज़ात तो वो है जो गुनाह नहीं करते हैं, लेकिन थोड़ी देर के लिए अपने बच्चों में मगन होता है, मशगूल होता है, तो जन्नत की याद कम आती है, जहन्नम की याद कम आती है, तो कह रहे हैं कि हम मुनाफिक हो गए। मेरे प्यारे साथियों, कुरान में अल्लाह फरमाता है कि आए लोगों, अपने परवरदिगार से डरो और अपनी ज़िंदगी का मुहासबा करो कि हम अपनी ज़िंदगी में कहाँ तक कामयाब है। ज़िंदगी के बारे में गौर करना है और अपना हिसाब व किताब कर लेना है कि हम कहाँ तक कामयाब है। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह फरमाता है अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, तुम्हें माल की ज्यादती ने, तुम्हें दौलत की ज्यादती ने, तुम्हें हुस्न जमाल की ज्यादती ने इतना गाफिल कर दिया, इतना गाफिल कर दिया, इतना गाफिल कर दिया कि तुम अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो गए, तुम दीन भूल गए, तुम दुनिया के लालच में आकर, दुनिया के जाहो जलाल में पढ़कर दीन को भूल गए, इस्लाम को भूल गए, नबी अकरम का फरमान भूल गए, अल्लाह का वादा भूल गए। मेरे प्यारे साथियों, हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, यहाँ तक कि तुम कब्रिस्तान जा पहुंचे, यानी दुनिया करते रहे, माल और हल में मजीद करते गए, दुनिया कमाते गए, हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी नहीं हुई और तुम दुनिया को छोड़ गए और कब्रिस्तान जा पहुंचे। मेरे प्यारे साथियों, दुनिया कमाइए लेकिन आखिरत पर दुनिया को तरजीह नहीं दीजिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, ऐ लोगों, कामयाब वो है जो अपने आप को जहन्नम से बचा ले। कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, कामयाब वो है जो अपने आप को जहन्नम से बचा ले, जो अपने आप को आग से बचा ले, जो अपने आप को जहन्नम की आग से बचा ले और अपने कुम्बे कबीलों को जहन्नम की आग से बचा ले। वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा, मेरे प्यारे साथियों, ये जो दुनिया की आग है, ये दुनिया की आग कोयले से जल जाएगी, ये दुनिया की आग पेट्रोल से जल जाएगी, दुनिया की आग डीजल से जलेगी, दुनिया की आग पत्थर से, दुनिया की आग लकड़ियों से जलेगी, दुनिया की आग गैस से जलेगी, लेकिन जहन्नम की आग इंसान से जलेगी, जहन्नम की आग पत्थर से जलेंगी। तो मेरे भाइयों, कामयाब हुए जो अपने आप को भी जहन्नम की आग से बचा ले और अपने कुंबे कबीलों को भी जहन्नम की आग से बचा ले और अपनी जिंदगी के बारे में गौर करे। आज तो हमारा हाल यह है कि हम कब्रिस्तान भी जाते तो अल्लाह का खौफ पैदा नहीं होता है, वहां पर भी हम हंसी मजाक करते हैं। हजरत उस्मान गनी जो ज़ुन्नूरैन है, जिनको अल्लाह के नबी ने दो बेटियां दी थी उनकी जिंदगी में, मेरे प्यारे साथियों, उस्मान गनी का हाल ये, जिनको अल्लाह के नबी दुनिया में बशारत जन्नत की दिए, खुशखबरी दुनिया में जन्नत की दिए, अशरे मुबशरा में शामिल है। मेरे प्यारे साथियों, आपने नाम लेकर फरमाया उस्मान फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना, उस्मान जन्नती, उस्मान जन्नती। उस्मान गनी का हाल है मेरे भाइयों, जब जन्नत का जिक्र किया जाता है तो नहीं रोता है, जहन्नम का जिक्र किया जाता है तो नहीं रोते हैं, लेकिन अज़ाब कब्र के बारे में सुनता है, जब कब्र के पास से गुजरते हैं इतना रोते कि आपकी दाढ़ी तर हो जाती है, जमीन भीग जाती है। लोगों ने पूछा उस्मान क्या बात है, तुज़करुल जन्नतु वन्नार, आपके सामने जन्नत का जिक्र किया जाता है, आपके सामने जहन्नम का जिक्र किया जाता है, आप इतना नहीं रोते, लेकिन जब आपके सामने अज़ाब कब्र का जिक्र किया जाता है तो आप इतना रोते हैं। हज़रत उस्मान गनी का जवाब ये है कि इन्नल कब्रा अव्वल मंजिल मिन मनाजिलिल आखिरा, ऐ लोगों, मैं अज़ाब कब्र से इसलिए रो रहा हूँ क्योंकि आखिरत की मंजिलों में पहली मंजिल कब्र की है। अगर इस मंजिल को कोई आसानी से पार कर लिया तो आने वाली मंजिल उनके लिए आसान हो जाएंगे। मेरे प्यारे साथियों, हम कुरान पढ़ते हैं लेकिन हमारी दिल की दुनिया बदलती नहीं है। रमज़ान का महीना आ रहा है, कितने मुसलमान ऐसे हैं जो रमज़ान के महीने में पूरा कुरान पढ़ जाएंगे, हमारी बहनें भी कुरान पढ़ जाएंगी, लेकिन मेरे भाइयों, दिल की दुनिया हमारी और आपकी बदलती नहीं है। हजरत उमर फारूक कुरान पढ़ रहे हैं,
कुरान की एक आयत हाथ लगी, इन्ना अज़ाब रब्बिक लवाक़ि, यकीनन तेरे रब का अज़ाब बरहक है, यकीनन तेरे रब का अज़ाब वाक़ई होने वाला है, साबित शुदा है। जब ये आयत पढ़ी तो गशी आए, बेहोश हो गए, ज़मीन पर गिर गए, बीमार पड़ गए। लोग इयादत करने के लिए आ गए। लोगों ने पूछा उमर क्या हाल है? हज़रत उमर फारूक जवाब देते, लोगों अगर आसमान से कोई निदा आए, आसमान से कोई आवाज़ देने वाला आवाज़ दे कि दुनिया में जितने भी लोग हैं सब जन्नती हैं, सब जन्नती, एक ही जहन्नमी, तो हज़रत उमर अपने आप को ये महसूस करेगा कि उमर ही जहन्नमी है। मेरे भाइयों, जिन्होंने अपनी कौम के लिए, जिन्होंने मुसलमानों के लिए रातों दिन मेहनत किए, रातों को जाग कर मेरे भाइयों कौम की खिदमत किए, मेरे भाइयों गौर कीजिए, गरीबों की मदद किए, रात में गश्त लगाया करते थे। मेरे प्यारे साथियों, जिन्होंने अपने आप को बड़ा नहीं समझा, दुनिया में अपने उम्मत के खातिर, दुनिया में मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्मत के खातिर, मुसलमानों के खातिर हज़रत उमर फारूक ने रातों को जाग कर इस कौम की मेहनत के लिए, इस कौम की तरक्की के लिए, इस कौम की मदद के लिए रातों को कुर्बान किया। मेरे प्यारे साथियों, उस उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का हाल है, कुरान की एक आयत पढ़ी तो बेहोश होकर गिर गए। हम अपनी ज़िंदगी के बारे में गौर करें कि हम अपनी ज़िंदगी में कहाँ तक कामयाब है। अल्लाह फरमाता है, कामयाब वो है जो ये तैयारी करे कि हमने आखिरत के लिए क्या भेजा है। दुनिया में आप पटना जाए, हावड़ा जाए, कोलकाता जाए, यहाँ से अगर कोलकाता जाना हो, 300 किलोमीटर का सफ़र करना हो, आप तैयारी कर लेते हैं, आपको एग्ज़ाम में बैठना हो तैयारी कर लेते हैं। लेकिन मेरे भाइयों, हमें और आपको इस दुनिया को अलविदा कह के जाना है, लेकिन हम उस दुनिया के लिए कुछ तैयारी नहीं करते हैं। एक इंसान सऊदी जाता है, दुबई जाता है, 4 साल बाद 5 साल बाद वापस आ जाता है, लेकिन उसको मालूम होता है कि हम 4 साल बाद अगर अल्लाह ने हयात दी, अगर ज़िंदगी दी तो वापस आएंगे। लेकिन मेरे भाइयों, इस दुनिया से चल बसे तो वापस नहीं होंगे। मेरे भाइयों, हम और आप अपनी ज़िंदगी को यूं ही बेकार कामों में, आयश इशरत में ना गुजारे, बल्कि ज़िंदगी में कामयाब बने, दुनिया में अपनी कीमती औकात को गनीमत समझे, दुनिया में वक्त को गनीमत समझे, और दुनिया में ऐश इशरत में अपनी जवानी को ख़त्म न करे, अपनी ज़िंदगी को बर्बाद न करे। बेकार ज़िंदगी को तू सवार ले, तौबा का दर खुला है रब को पुकार ले। बेकार ज़िंदगी को तू सवार ले, तौबा का दर खुला है रब को पुकार ले। मेरे भाइयों, दुनिया में हम मोबाइलों के पीछे और पता नहीं सिनेमा हॉल के पीछे, दुनिया में फिल्म हॉल के पीछे अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर देते हैं, लेकिन आखिरत की तैयारी नहीं करते हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह फरमाता है, यहाँ जो तुम बोओगे वो काटोगे, वो वहाँ पाओगे, यहाँ मेहनत करोगे तो वहाँ पाओगे। अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद। हर इंसान को गौर करना चाहिए कि उसने आने वाले दिन के लिए कौन सी तैयारी कर रखी है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाल ये है कि आप नबी हैं, आप तमाम रसूलों का सरदार हैं, आप इस उम्मत का पेशवा है, आप इस उम्मत का रहबर है। मेरे भाइयों, लेकिन हाल ये है कि आप दोपहर को निकलते हैं, भूख की वजह से निकलते हैं, परेशान हाल है कि रास्ते में कोई आदमी मिल जाए खाना दे दे। मेरे भाइयों, रास्ते में उमर और अबू बकर जैसे लोगों से मुलाकात हुई, सहाबा से मुलाकात हुई। लोगों ने पूछा कि आप इस वक्त क्यों आए हैं? आपने फरमाया, मुझे भूख ने यहाँ तक आने पे मजबूर कर दिया। मेरे भाइयों, एक नबी है, एक रसूल है, लेकिन हाल ये है मेरे भाइयों की भूख से परेशान है। चाहता अल्लाह से दुआ करता तो अल्लाह पहाड़ को भी सोने का कर देता, लेकिन अल्लाह से मांगा नहीं, अल्लाह से कहा नहीं, अल्लाह से शिकवा नहीं किया, अल्लाह से शिकायत नहीं की कि अल्लाह हमारे लिए पहाड़ को सोना बना दे। मेरे प्यारे साथियों, यही तो सादगी की पहचान है, यही तो मोमिन की पहचान है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी है, क्या लोगों, अगर तुम वाकई मोमिन हो, अगर तुम दुनिया में गुनाह करते हो, बड़े से बड़े गुनाह करते हो,
अगर तुम काफिर हो, बड़े से बड़े गुनाह करते हो, तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम्हारी नाक में कोई मक्खी बैठी है, तुमने हाथों से इशारा किया, वो मक्खी उड़ गए, अगर तुम काफिर हो। लेकिन हाँ, अगर तुम मोमिन हो और छोटी से छोटी गलतियां भी करो, तो अपने आप को ऐसा समझोगे कि किसी पहाड़ के नीचे है, और वो पहाड़ कब गिर जाए उसका ठिकाना नहीं। मेरे भाइयों, यकीन जानिए, अगर आपके अंदर ईमानी जज्बा है, आपके अंदर ईमान है, मेरे भाइयों, आपके अंदर अल्लाह का खौफ है, तो छोटी सी छोटी गलतियां आप करें तो आपको एहसास होगा कि मैंने गुनाह कर दिया है। करीब है कि अल्लाह हमारे ऊपर पहाड़ गिरा दे, हम किसी पहाड़ के नीचे हैं। लेकिन अगर आप काफिर हैं, आपके दिल में ईमान नहीं है, खुद एहतिसाबी की तकरीर पर मैं ये बातें आपके सामने रख रहा हूँ, इस मौजू पर ये बातें रख रहा हूँ। मेरे भाइयों, अगर आप अपनी जिंदगी पर गौर करें तो आपको पता चलेगा, आप छोटी गलतियां करें और आप अगर मोमिन हैं, आपके दिल में अल्लाह का खौफ है, तो आप ऐसा समझेंगे कि हम किसी पहाड़ के नीचे हैं। लेकिन आपके अंदर ईमान नहीं है, आपके अंदर अल्लाह का खौफ नहीं है, तो बड़े से बड़े गुनाह के काम कर जाएंगे, बड़ी से बड़ी गलतियां कर जाएंगे, आपको एहसास नहीं होगा और ये समझेंगे आप कि नाक में मक्खी बैठी, उसको इशारा किया और वो उड़ गया। मेरे प्यारे साथियों, गौर कीजिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्नल अब्दा इज़ा अख्ता खतियतन नुकितत फी कल्बिही नुक्ततुन सौदा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ओ मेरे बंदो, जब इंसान गुनाह के काम करता है, जब बंदा गुनाह करता है, जब बंदा खता करता है, जब बंदा गलती करता है, अगर वो उस गलती से तौबा कर लेता है, रुजू कर लेता है, उसके बाद गुनाह नहीं करता है, अल्लाह फरमाता है जब बंदा गुनाह करता है उसके दिल में एक नुक्ता बैठ जाता है, सियाह धब्बा बैठ जाता है। अगर वो तौबा कर लेता है तो धब्बा मिट जाता है, अगर तौबा नहीं करता है तो धब्बा धीरे धीरे पूरे जिस्म में फैल जाता है। फिर उसको नमाज पढ़ना ना पढ़ना दोनों में अंतर समझ में नहीं आता है, रोजा रखना ना रखना अंतर समझ में नहीं आता है, चोरी करना ना करना फर्क समझ में नहीं आता है। गुनहगार कौन है, कौन नेकार है, उसको पता नहीं चलता, उसको फर्क नहीं आता है। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप गुनाह के काम किए हैं तो तौबा कीजिए और उस गुनाह से बाज आ जाइए, वरना वो धब्बा धीरे धीरे आपके जिस्म में फैल जाएगा। फिर आपको नमाजी और बेनमाजी में फर्क नहीं आएगा, आपको रोजेदार और गैर रोजेदार में फर्क नजर नहीं आएगा, आपको खुद न नमाज का रास्ता अच्छा लगेगा न रोजा का रास्ता अच्छा लगेगा। आपको लगेगा कि न हमारे लिए जन्नत ठीक है न जहन्नम ठीक है, हम तो वैसे ही नास्तिक है, आपको ऐसा लगेगा। मेरे प्यारे साथियों, खुद एहतिसाबी का मतलब ये है कि हम अपनी जिंदगी के बारे में गौर करें। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर का मशहूर है रिवायत है, आप कहा करते थे, मशहूर जुमला है, इदा अमशैत फला तंतज़िर सबाहा, लोगों जब शाम हो जाए तो सुबह का इंतजार ना किया करो, और जब सुबह हो जाए तो शाम का इंतजार ना किया करो। अगर शाम है तो तुम हिसाब कर लो कि हमने कितनी नेकियां किए, कितने गुनाह के काम किए, पता नहीं सुबह तक मुर्दों में लिखे जाओ या जिंदों में लिखे जाओ या मुर्दों में। फिर जब सुबह हो जाए तो रात का हिसाब लगा लिया करो कि हम पता नहीं शाम तक जिंदों में लिखे जाएं या मुर्दों में। मेरे प्यारे साथियों, अगर इसी तरह आप अपना हिसाब लगाते रहेंगे तो जरूर आपसे ज्यादा गुनाह नहीं होगा, आपसे नेकियां ही नेकियां होगी। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, ऐ मेरे बंदो, अगर तुमने अपने आप को जहन्नुम की आग से बचा लिया, अपने कुंबे कबीलों को जहन्नम से बचा लिया, तो यही सबसे बड़ी कामयाबी है। हम अपनी जिंदगी के बारे में गौर कीजिए कि जब हमारा बच्चा, जब घर में आग लग जाए और हमारा बच्चा जल जाए और उनकी लाश को हम देखें तो देखना गवारा नहीं होता है, देख नहीं सकते। दुनिया में जली हुई लाश को हम देख नहीं सकते। मेरे भाइयों, ये दुनिया का हाल है, लेकिन हम कैसे गवारा करें कि क़यामत के दिन जहन्नम में हमारी औलाद जले, जहन्नम में हमारी औलाद जले। दुनिया में एक बेटा को कोई थप्पड़ मार देता है, हमारे अंदर गैरत आ जाती है, हमारे अंदर शोर आ जाता है, हमारे अंदर जज्बा पैदा हो जाता है,
हम भी मैदान में उतर जाते हैं कि नहीं उनसे मुकाबला करेंगे। कौन होता है मेरे बेटे को थप्पड़ मारने वाला? मेरे प्यारे साथियों, दुनिया में एक बेटे की कदर जब इतनी है तो आप उस दुनिया के बारे में भी सोचिए। जिस दिन आपका बेटा, अगर आप भी जन्नती है, आपका बेटा भी जन्नती है, नामा या माल दाएं हाथ में दिया जाएगा। अगर आपके बेटे को नामा या माल दाएं हाथ में दिया जाए, सीधे सीधे हाथों दिया जाए, वयनकलिबु इला अहलिही मसरूरा, तो आपके पास आपका बेटा खुश खुर्रम आएंगे, लौट आएंगे, खुशी खुशी लौट आएंगे। मेरे भाइयों, दुनिया में जली हुई लाश को देख नहीं सकते। दुनिया में आपका बेटा आपको गवारा नहीं है कि किसी समंदर में डूब जाए, सैलाब आए, आप भागना चाहे भागेंगे, लेकिन देखेंगे कि औलाद पीछे छूट रही तो आप अपनी औलाद को सीने में लगाएंगे। मेरे भाइयों, लेकिन कैसे आप गवारा करेंगे कि आपकी औलाद जहन्नम में जले? इसलिए अल्लाह फरमाता है कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को भी जहन्नम की आग से बचाओ और अपने कुंबे कबीलों को भी जहन्नम की आग से बचाओ। नबी अकरम का अगर खानदान का जायजा लिया जाए, आपकी फैमिली का जायजा लिया जाए, आपके आले बैत का जायजा लिया जाए, मेरे भाइयों, वैसे सब जन्नती है, लेकिन फिर भी आप अपनी बेटी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में क्या ख्याल रखते हैं? हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर आप जाते हैं, 1800 रुपया हिसाब किताब कम है। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर आप गए, आपकी बेटी है, घर गए, देखा कि एक डिजाइनदार पर्दा लटक रहा है, डिजाइनदार चादर लटक रही है। आपने डिजाइनदार चादर को देखा, आपने डिजाइनदार पर्दा देखा, आप घर से वापस आ गए। आपने उस घर में रुकना गवारा नहीं किया। बेटी समझ गई कि अब्बू नाराज होकर चले गए। मेरे प्यारे साथियों, आपने अली से कहा, ओ मेरे शौहर, आप जाइए और मेरे अब्बू से कहिए कि क्या हुआ। आपने नाराजगी का इजहार करते हुए क्यों मेरे घर से वापस आ गए? हजरत अली आपके पास जाते हैं और कहते हैं, अल्लाह के नबी, आप अभी अभी मेरे घर गए थे, क्या हुआ आप मेरे घर से आ गए? आपने फरमाया, अली, मैं नहीं चाहता हूं कि मेरी बेटी के घर में डिजाइनदार पर्दा हो। ओ अली, मैं नहीं चाहता हूं कि मेरी बेटी दुनिया के ज़ेब व ज़ीनत के पीछे पड़ जाए। ओ अली, मैं नहीं चाहता हूं कि मेरी बेटी दुनिया में ज़ीनत इख्तियार करे। ओ अली, माँ अली वाली दुनिया, माँ अना व दुनिया, अय अली, मुझे दुनिया से क्या मतलब है? करा कि बिनिस्तदल्ला तहता शजरतिन, अय अली, मेरी मिसाल तो दुनिया में वैसे है, मेरी और दुनिया की मिसाल तो वैसे है जिस तरह मुसाफिर किसी सायेदार जगह में आराम करता है, थोड़ी देर आराम के बाद वहां से चल जाता है। मेरे प्यारे साथियों, आपने अपनी बेटी के घर में ये देखना गवारा नहीं कि एक चादर, डिजाइनदार चादर देखना गवारा नहीं कि आप वापस आ गए। आप ये नहीं चाहते थे कि आपकी बेटी, आप ये नहीं चाहते थे कि आपकी बेटी, आप ये नहीं चाहते थे कि आपकी बेटी दुनिया की जीनत इख्तियार करे। मेरे प्यारे साथियों, गौर कीजिए और अपनी जिंदगी का मुहासबा कीजिए कि हम कहां तक कामयाब है, हमारी औलाद कहां तक कामयाब हो रही है। 1800 रुपये हिसाब में कम है। कोई अगर दीनी जज्बा रखता है, मेरे नौजवान भाई हो, बुजुर्ग हो, चाहे ख़वातीन में अगर 2-4 रह गई हो, तो आप 100 रुपये करके, 50 रुपये करके यहाँ दे के जाए। आपसे जितना हो सके, कोई प्रेशर नहीं, रात भी काफ़ी हो चुकी है, 100-50 जितना हो सके आप यहाँ आके दे के जाएँ। एक ही वाक़या कहकर मैं अपनी तकरीर को ख़त्म करूँगा। मेरे प्यारे साथियों, ज़रूरत है, यहाँ एक मदरसा तामीर होगा और यहाँ से इंशाअल्लाह मुस्तकबिल रोशन होंगे। यहाँ बच्चे पढ़ेंगे, तालीम हासिल करके कोई आलिम बनेगा, आपके जनाजे में काम आएंगे, आपके निकाह में काम आएंगे। अगर रहबर ना रहें तो ये समझ जाइए कि दुनिया अंधी हो जाएगी। तो मेरे प्यारे साथियों, जो 50-100 रुपये अगर कोई देना चाहें, आए और दे के जाए। तो मेरे प्यारे साथियों, आपने फरमाया कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को भी जहन्नम से बचाओ और अपने अहल व अयाल को भी जहन्नम से बचाओ। एक भाई 100 रुपये दे के गए हैं और 17 आदमी आइए और देखे जाइए। आप हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का निकाह कराते हैं हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से। मेरे प्यारे साथियों,
600 700 800 800 रुपया हो गया है और 1000 रुपया बाकी है। आइए और देखे जाइए। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का निकाह होता है। हजरत अली गरीब है, आपने गरीबी नहीं देखी, आपने ब्याह दे दिया, आपने शादी करा दिया, आपने निकाह करा दिया। गौर कीजिए मेरे भाइयों, हम अपनी जिंदगी के बारे में गौर करें। जब अपनी बेटी का निकाह कराते हैं, जब अपने बेटे का निकाह कराते हैं, ईमानदारी से बताइए कि आप शादी में क्या देखते हैं। अल्लाह के नबी फरमाते तुनकाहुल मरअतु लिअरबईन, मेरे भाइयों, लिमालिहा वली जमालिहा वली हसबिहा वली दीनिहा फज़ पर बिज़ातिद्दीन, दीनदारी को तरजीह देनी चाहिए मेरे भाइयों। लेकिन हम माल देखते हैं। कोई लड़का अगर गरीब है, कोई मौलवी है, उनके पास पैसा नहीं है, दीनदार है, लेकिन हम और आप उनसे अपनी बेटी का निकाह कराने के लिए तैयार नहीं होते हैं। हजरत अली गरीब हालत में, लेकिन आपने उनसे अपनी बेटी का निकाह करा दिया। मेरे प्यारे साथियों, हजरत अली के घर में हजरत फातिमा जब रुखसती होके गए तो फातिमा घर के काम काज में हाथ बटाती थी, खुद काम कर लिया करती थी। काम करते करते हाथ में निशान पड़ गए। हजरत फातिमा ने सुना कि मेरे घर में मेरे अब्बू के पास कुछ गुलाम आए हैं, कुछ नौकर आए, कुछ खादिम आए हैं। तो आप जल्दी से अपने अब्बू के घर गए और अपने अब्बू से कहा ओ मेरे, और अपने उसके घर गए, देखा कि अब्बू घर में नहीं है। अम्मी आयशा है, अम्मी आयशा से कहा ओ मेरी अम्मी, जब नबी अकरम आए, जब मेरे अब्बू आए तो आप कहना कि फातिमा आई थी, घर के काम में हाथ बटाती है, हाथ में निशान पड़ गया है। जब मेरे अब्बू आए तो कहना कि गुलाम दे देना, मुझे काम की ज़रूरत है, मुझे नौकर की ज़रूरत है, मुझे खादिम की ज़रूरत है। मेरे प्यारे साथियों, नबी अकरम घर आए। जब आयशा ने बताया कि अल्लाह के नबी फातिमा आई थी, वो घर के काम करते करते थक जाती है, हाथ में निशान पड़ जाता है। मेरे प्यारे साथियों, नबी अकरम उसी वक्त फौरन हजरत फातिमा के घर गए, देखा कि अली मौजूद है, हजरत फातिमा मौजूद है। आपने कहा फातिमा, आपने कहा ओ मेरी लख्ते जिगर, ओ मेरी बेटी, मेरे पास गुलाम है, ठीक है, ओ मेरी बेटी मेरे पास गुलाम है, लेकिन मैं तुम्हें गुलाम नहीं दे सकता, इसलिए कि मेरी बेटी, मुझे गुलाम को बेचना है, कुछ रुपये जमा करना है। मेरे जो तलबा पढ़ रहे हैं, मेरे जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, असहाबे सुफ़ा पढ़ रहे हैं, उन पर खर्च किया जाएगा, असातिज़ा की तनख्वाहों पर खर्च किया जाएगा। ओ मेरी बेटी, मैं तुम्हें इस वक्त गुलाम नहीं दे सकता, लेकिन हाँ वो मेरी बेटी, मैं तुम्हें एक अफजल दुआ बता के जा रहा हूँ, अफजल तरीका बता के जा रहा हूँ। ओ मेरी बेटी, जब तुम बिस्तर पे आओ तो बिस्तर पे आने से पहले, जब बिस्तर पे आओ सोने से पहले ये दुआ पढ़ लिया करो 33 बार सुभान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 34 बार अल्लाहु अकबर। जब ये दुआ पढ़ लोगे सारी थकावट दूर हो जाएगी, थकान दूर हो जाएगा। आप दिन भर काम करते हैं, आपके अंदर थकावट पैदा होती है। जब ये दुआ पढ़ के सोएंगे 33 बार, आप लोग भी सीख लीजिए, 33 बार सुभान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 34 बार अल्लाहु अकबर। ये दुआ पढ़ के अगर आप सोएंगे आपसे थकावट दूर हो जाएगी। मेरे भाइयों, दान देने में आगे रहिए। बोलना पड़ रहा है, आप अपने मर्जी से भी दीजिए। मैं एक चुटकुला कहकर अपनी तकरीर को ख़त्म करता हूँ। एक बादशाह था, बड़ा उटपाटंग सवाल करता था। उन्होंने सवाल किया कि कोई अगर नौजवान मेरे सवाल का जवाब दे दे, मैं उसको इनाम दूंगा, अगर जवाब ना दे सके तो मैं फिर उसे सज़ा दूंगा। एक नौजवान खड़ा हुआ, कहा बादशाह सलामत, आप सवाल कीजिए। बादशाह ने सवाल किया, नौजवान मेरे हथेली में बाल क्यों नहीं है? नौजवान बड़ा चालाक था, उसने कहा बादशाह सलामत, दरअसल बात यह है कि आप दानी हैं, सखी आदमी है, दान देने वाले हैं, दान देते देते आपके हथेली से बाल खिसक गया। बड़ा खुश हुआ, इनाम दिया नौजवान को। फिर कुछ देर में ख्याल आया, अच्छा मेरे हथेली में बाल नहीं इसलिए कि मैं दानी हूँ, तुम्हारे हथेली में बाल क्यों नहीं है? तो नौजवान कहता है बादशाह सलामत, आपका देते देते खिसक गया और मेरा लेते लेते खिसक गया। अच्छा, बहुत बढ़िया जवाब, इनाम दो। फिर कुछ देर बाद सवाल आया, जहन में ख्याल आया, मेरे हथेली में बाल नहीं है इसलिए कि मैं देता हूँ, तुम्हारे हथेली में बाल नहीं इसलिए नहीं है कि तुम लेते हो। जितने लोग बैठे हैं, जितने लोग पूरी दुनिया में हैं, किसी के हथेली में बाल नहीं, इसकी वजह क्या है? नौजवान ने कहा बादशाह सलामत, आपका देते देते खिसक गया, मेरा लेते लेते खिसक गया, और जितने लोग बैठे सब हसद खोरे, सब जलन खोरे, इन लोगों का हाथ मलते मलते खिसक गया। दुनिया में आखिरत का खसारा न कीजिए,
दुनिया में आखिरत का खसारा न कीजिए, मोबाइलों में वक्त गुजारा न कीजिए, मोबाइलों में वक्त गुजारा न कीजिए। दान देने के टाइम दान दीजिए, फिर ऐसा दान मत दीजिए कि हाथ से हथेली से बाल ही घिसक जाए। मेरे भाइयों, औरत के अंदर भी जज्बा पैदा कराइए, लेकिन ज़रूरत है मेरी कौम के नौजवानों, हालिया रिपोर्ट के मुताबिक ये आने वाले 14 तारीख को मुस्लिम लड़कियां बहुत सी 80 या कितने तकरीबन बताए गए हैं, रिपोर्ट सही नहीं है लेकिन मैं बता रहा हूँ, ये हाल ही में 14 फरवरी को कितनी मुस्लिम लड़कियां मुर्तद हो गई है। इसकी वजह ये है कि गार्जियन इसका जिम्मेदार है, गार्जियन इसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, इन्हें अपने हाथ में मोबाइल दे देते हैं और ये मोबाइलों के जरिए फेसबुक में फोटो अपलोड करते हैं, छवि छोड़ते हैं, और कारण यही है कि एक दूसरे से संबंध बनाती है, रिलेशन बनाती है, और धीरे धीरे ये मुर्तद हो जाते हैं, निकाह के चंगुल में फंसकर मुर्तद के शिकार हो जाते हैं। मेरे भाइयों, बंगला एक गज़ल है, एक ही मिसरा पढ़ूंगा। कुंदशरी में তুমি, कुंदशरी में তুমি কেমন তোমার বাপ, ফেসবুকেতে ছবি ছেড়ে করছো কেন পাপ, কুন্দেশেরি মেয়ে তুমি কেমন তোমার বাপ, ফেসবুকেতে ছবি ছেড়ে করছো কেন পাপ। मेरे प्यारे साथियों, गौर कीजिए, अपनी बेटियों को मोबाइल नहीं देना है, अगर ज़रूरत पर देना है तो उसका हिसाब भी लेना है, ये भी खुद एहतिसाबी है, ये भी मुहासबा नफ्स है। आज हमें शर्म आ रही है कि पहले सुन रहे थे कि एक लड़कियां मुर्तद हुई, वो फिर धीरे धीरे 100 में बदली, फिर हज़ारों में बदली, अब तो लाखों केस ऐसे आ रहे कि लड़कियां मुर्तद हो रही है। इसकी वजह है कि आप जिम्मेदार हैं। एक लड़की अगर अपने बाप को जन्नत ले जा सकती है, अपने गार्जियन को जन्नत ले जा सकती है, तो वही लड़की आपको जहन्नम भी ले जा सकती है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। वा खुदा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।